Hello my dear friends, I am Professor Vayam Khan and this is the part of unit number 2, transportation models. Okay, so in previous video we have covered the definition of transportation model, the you can say matrix terminology of this transportation model, as well as we have discussed which are the various assumptions that are made while solving this transportation model. So this transportation model is related with the problem of transportation. Some products that are to be transported from one place to another place. So during this transportation there is some cost involved in it, so that is the transportation cost, and that transportation cost is to be minimized by us to, you can say, reduce the cost, to optimize the solution. So that we are going to do in this transportation model. Okay, so let us begin with the part 2 of this transportation models. Let us understand the terminology, matrix terminology of this transportation model. So there will be a matrix consisting of some rows and some columns. So you can see here there are some rows and there are some columns. So rows will be the plants, or they will be the point of origin. Okay, so from that point the items are going to be shipped, or the items are going to be transported. So they are treated as suppliers. You can say they are suppliers. They are supplying the items. Okay, now these items are transported to some warehouses, or these are also called as destinations. Okay, these are nothing but destinations. Okay, so these destinations will require some of the items. Okay, suppose some machinery parts, some automobile parts, some medicines, some equipments, okay, some food items, they require these items. Destinations require these items, and that items will be supplied by the plants or the origin. So origin will have some supply, okay, some limited supply. Similarly, the destinations or the warehouses will have some requirement or demand. Okay, so the supplies will be denoted by AI and the requirements will be denoted by BJs. Okay, so suppose this is the first plant A. प्लांट A है ये, इसका जो भी सप्लाई है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो कितना सप्लाई कर सकता है, 10 सप्लाई कर सकता है. देन दिस AI will be known as A1. so this will be A1 for plant 1. प्लांट A के लिए A1 रहेगा. प्लांट B के लिए this will be A2 and plant 3 के लिए this will be A3. Similarly, for requirements, warehouse 1 will be represented by, the requirement of warehouse 1 will be represented by B1. Okay, warehouse 2 requirement will be represented by B2 and it will be represented by B3. Okay, so these are the requirements and these are the supplies which are written outside the matrix. So you can see here I have highlighted this specific matrix with bold borders and the remaining are light. Okay, so the transportation cost which is associated with item being transported from plant A to warehouse 1 will be given here. जो भी कॉस्ट हमको लगने वाली है एक आइटम के लिए, कितने आइटम्स के लिए, एक आइटम के लिए, फॉर वन आइटम टू बी ट्रांसपोर्टेड, जो ट्रांसपोर्ट करना है हमको A से 1 को. एक आइटम अगर मुझे भेजना है तो मुझे कितने यूनिट्स लगेंगे, 2 यूनिट्स लगेंगे. सपोज दीज आर दी 2 रुपीज़, ये रुपीज़ में हम गिनते हैं, समझ लो 2 रुपये मुझे क्या लगेगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा. ओके, सिमिलरली अगर मैं ए प्लांट से वेयरहाउस 2 को कोई आइटम बेचता हूँ तो मुझे जो भी कॉस्ट लगेगी वो यहाँ पर दी रहेगी. इट विल बी कॉस्ट ₹3. ठीक है, उसकी कॉस्ट कितनी रहेगी, 3. सिमिलरली 3 नंबर के वेयरहाउस को बेचता हो तो उसको 11 रुपये लगेंगे. सो दिस विल बी दी, you can say
कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर एटम हर एक एटम को। अगर ऐसे मैं इस प्लांट 1 को 2 आइटम्स भेजता हूँ तो मुझे कितने रुपए लगेंगे, 2 × 2 4 रुपीज़ मुझे यहाँ लगेंगे। उसी तरीके से वेयर हाउस 2 को अगर मैं 5 भेजता हूँ तो मुझे कितने लगेंगे, 15 रुपीज़ लगेंगे। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आइटम्स बीइंग शिप्ड मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर आइटम। ओके, नाउ हाउ मच आइटम्स आर टू बी ट्रांसपोर्टेड, कितने आइटम्स हमको ट्रांसपोर्ट करना है, ये रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पर एक पैरेंथेसिस में। ठीक है, एक ब्रैकेट रहेगा, इस ब्रैकेट के अंदर हम डिसाइड करेंगे कितने हमको भेजना है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी मेथड ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूशन का मेथड रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको कितने भेजने हैं आइटम्स, कौन सी जगह पर कितने भेजने हैं, कितना सस्ता गिरेगा। बिकॉज हम अल्टीमेटली क्या चाहते हैं कि जो कॉस्ट है वो क्या हो जाए, इट शुड बी मिनिमाइज हो जाए, सबसे कम कॉस्ट हमको लगे। और इन केस अगर प्रॉफिट दिया है तो वो क्या हो जाए, प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमाइज। ओके, प्रॉफिट क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज होना चाहिए। सो हम वो आगे मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम भी समझ के लेंगे, बट अभी हम देखते हैं कि हमको कितने अलोकेट करना है, कितने एक प्लांट से दूसरे डेस्टिनेशन पर कितने आइटम्स ट्रांसपोर्ट करना है, उसको हम बोलते हैं एलोकेशन। सो ये जो कॉस्ट है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय CIJ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CIJ। और वहीं पर जो हमारा एलोकेशंस है, मतलब कितने आइटम्स हम शिप कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 2 आइटम्स किया, यहाँ पर 5 किया, सो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं XIJ से। तो ये जो है 2, तो ये इसके लिए हो जाएगा ये X1 1, वेयर I विल रिप्रेजेंट दी रो एंड J विल रिप्रेजेंट दी कॉलम। I क्या रिप्रेजेंट करेगा, रो, J करेगा कॉलम। ठीक है, सो ये हो जाएगा XIJ और ये रहेगा हमारा CIJ। सो दिस विल बी दी CIJ एंड दिस विल बी दी XIJ। ना कितने हमको एलोकेशंस करने हैं ये डिपेंड करेगा हमारे मेथड के ऊपर, हम कितने करते हैं, बट हम उतने ही कर सकते हैं जितने रिम कंडीशंस हमको अलाउ करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी मेथड बोलती है कि इस पहले सेल को क्या करो, अलोकेट करो, मतलब यहाँ पर एलोकेशन दो मतलब प्लांट A क्या करेगा, डेस्टिनेशन 1 को सप्लाई करेगा। ठीक है, सप्लाई करेगा कोई आइटम्स। ठीक है, ये कितने आइटम सप्लाई कर सकता है प्लांट A, तो वो टोटल 10 आइटम सप्लाई कर सकता है। तो ये 10 आइटम वो चाहे तो 1 को भी भेज सकता है, 2 को भी भेज सकता है, 3 को भी भेज सकता है, इनमें से 2 को भी भेज सकता है, इनमें से 3 को भेज सकता है, किसी एक को भी सप्लाई कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑफ सोल्यूशन। हमारी जो मेथड बताएगी उस हिसाब से हम वहाँ पर एलोकेशन करेंगे। ओके, सपोज हमारी मेथड बोलती है कि 2 जो है सेल नंबर 1 जो है इसको एलोकेट करो, तो कितना सप्लाई कर सकता है प्लांट A? प्लांट A कैन सप्लाई 10 आइटम्स, वेयर एज जो डेस्टिनेशन 1 है, इस डेस्टिनेशन 1 की रिक्वायरमेंट कितनी है, 5 है। तो मैं क्या करूँगा, अरे इसको 5 चाहिए, चलो ठीक है, इसको 5 यूनिट्स क्या कर देते हैं, एलोकेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर उसको पैरेंथेसिस में लिख दूँगा, सिंपली 5 यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एलोकेट कर दिया। मतलब ये जो 5 है, ये 5 आइटम्स की जो रिक्वायरमेंट है ये क्या हो गई है, प्लांट 1 की, डेस्टिनेशन 1 की फुलफिल हो चुकी है। सो दिस विल बिकम 0, ये हो जाएगा 0। और ये सप्लाई में से मैंने 5 जो है आइटम्स अभी ट्रांसपोर्ट कर दिए हैं, किसको, प्लांट नंबर वेयर हाउस नंबर 1 को, डेस्टिनेशन 1 को। तो मेरे पास कितने बचे हैं, 10 में से अभी 5 बचे हैं। ओके, सो ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, 5 आइटम सप्लाई कर दिया वेयर हाउस नंबर 1 को। मेरे पास और 5 बचे हैं, मैं चाहे तो 11 को भी दे सकता हूँ, मतलब प्लांट 3 को भी दे सकता, वेयर हाउस 3 को भी दे सकता हूँ और वेयर हाउस 2 को भी दे सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन माई मेथड, जो भी मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ उस हिसाब से। ठीक है, सपोज़ मैं रो मिनिमा यूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, चलो ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो मिनिमम है उसको मैं क्या कर दूँगा, एलोकेट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसको 5 आइटम्स, कितने चाहिए इसको, 5 आइटम्स चाहिए, तो इसको 5 के 5 पूरे हम सप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में 5 का सप्लाई अवेलेबल है। तो ये हो जाएगा सप्लाई 0 और ये डिमांड हो जाएगा 0। तो ये जो भी वेयर हाउस है इनकी रिक्वायरमेंट सब क्या हो गई है, फुलफिल हो गई है, इसलिए इनको कोई भी अभी आइटम सप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, आया ध्यान में। सिमिलरली ये जो A है, प्लांट A, इस प्लांट A का भी जो सप्लाई है वो क्या हो चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, क्रॉस ऑफ करें और बचे हुए फिर आइटम्स हम उसी तरीके से सप्लाई
करेंगे बचे हुए डेस्टिनेशंस को। अब डेस्टिनेशन 3 बची है, इसकी रिक्वायरमेंट अभी भी फुलफिल नहीं हुई है। तो सपोज़ में 1 है, इसको 15 दे देता हूँ आइटम्स। इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है प्लांट की, इस वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट है 20। ओके, सो 1 कितना सप्लाई कर सकता है, 15 कर सकता है। बी कितना सप्लाई कर सकता है, 15। तो यहाँ पर मैं 15 दे दूँगा इसको, ठीक है। वेयर एज दिस कैन सप्लाई 6, तो इनकी भी फुलफिल हो जाएगी रिक्वायरमेंट। ओके, सो एवरीथिंग विल गेट क्रॉस्ड ऑफ। ओके, सो इस तरीके से कुछ हम क्या करने वाले हैं, हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व करना है। बट बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम रिमेंबर ऑलवेज चेक सप्लाई एंड डिमांड। सो सप्लाई शुड बी इक्वल टू डिमांड इन एवरी केस। ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे बैलेंस्ड मैट्रिक्स। हमको हर बार चेक करना है कि हमारा मैट्रिक्स वेदर इट इज़ बैलेंस्ड और इट इज़ नॉट बैलेंस्ड। ओके, हर बार हमको चेक करना है मैट्रिक्स हमारा बैलेंस्ड है या नहीं है। ओके, सो ये हमारी टर्मिनोलॉजीज हैं। अब हम देखेंगे फेजेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है इसमें कौन सी स्टेजेस आती हैं सॉल्यूशन की। ओके, तो हमको क्या करना है कि पहली चीज़ करना है सबसे पहली फेज में कि ऑब्टेन करना है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज IBFS। इसको हम IBFS भी बोलते हैं। सो पहले बार हम तो मॉडल बनाएंगे, फिजिकल मॉडल बनाएंगे, उसको चेक करेंगे। फिजिकल मॉडल जो है उससे हमारा मैथमेटिकल मॉडल यानी मैट्रिक्स हम बनाएंगे। उस मैट्रिक्स को हम चेक करेंगे कि ये मैट्रिक्स बैलेंस्ड है या नहीं, मतलब सप्लाई जो है वो डिमांड की जितना है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे और फिर सोल्यूशन बनाना शुरू करेंगे। तो फिजिबल सोल्यूशन मतलब क्या रहता है, पॉसिबल सोल्यूशन रहता है, राइट। तो पॉसिबल सोल्यूशन कैन बिकम एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, वो बेस्ट सोल्यूशन बन सकता है, राइट। सो हमको क्या करना है, पहले तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट करने के बाद में हमको उसकी टेस्ट करनी है या फिर उससे हमको ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। फिर ये जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वेदर इट इज़ ऑप्टिमल और नॉट, ये हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। इसको क्या करेंगे, हम टेस्ट करेंगे। इफ दैट सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड IBFS बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, देन फाइंड ऑप्टिमल सोल्यूशन फ्रॉम दैट, देन फ्रॉम दैट ऑप्टिमल सोल्यूशन टेस्ट द ऑप्टिमैलिटी। जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वेदर इट इज़ ऑप्टिमल और नॉट, वो हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे बाय सम रूल्स। और अगर नहीं होता है ऑप्टिमल देन वी विल इटरेट टुवर्ड्स ऑप्टिमैलिटी, मतलब हम हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल बनाएंगे, ठीक है। सो नाउ फॉर फेज़ 1 के लिए हमारे पास में अलग अलग मेथड्स हैं। उसी तरीके से फेज़ 2 के लिए हमारे पास कुछ और मेथड्स हैं और ये टेस्टिंग के लिए कुछ रूल्स हैं। तो ये हम एक एक करके क्या करने वाले हैं, वीडियोस के ज़रिए से समझने वाले हैं। तो आज हम फेज़ 1 में जो होता है यानी जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है, ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये हम समझ के लेंगे, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, एक मेथड है जिसका नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल या NWCR। ओके, फिर है हमारा रो मिनिमा मेथड, इसके बारे में आपने असाइनमेंट मॉडल में सुना होगा मेरे से। फिर कॉलम मिनिमा मेथड है, फिर है लीस्ट कॉस्ट या फिर मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, इसको मैट्रिक्स मिनिमा मेथड भी बोलते हैं। फिर है वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड जिसको हम वैम मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। सो हमारा जो भी न्यूमेरिकल रहेगा, जो भी प्रॉब्लम रहेगा, इसको सॉल्व करने के लिए इसका फेज़ 1 यानी पहला सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, IBFS फाइंड आउट करने के लिए यू कैन यूज़ एनी ऑफ द मेथड फ्रॉम दीज गिवन मेथड्स। ओके, अगर आपको स्पेसिफिकली कोई मेथड मेंशन की है तो उसी मेथड से आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। इन केस अगर नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, वैम मेथड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है इन सभी मेथड्स में से, ठीक है। बट फिर भी वैम की जगह कई बार पूछते हैं कि लीस्ट कॉस्ट से सॉल्व करो या नॉर्थ वेस्ट से सॉल्व करो, ऐसा पूछा जाता है। तो अगर ऐसा पूछा गया तो आपको वो मेथड आनी चाहिए। तो इसीलिए हम आज पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल जो है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड जो है वो समझ के लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या बताता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल बताता है कि जो भी हमारा मैट्रिक्स है इसके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से क्या करो, एलोकेशन देना शुरू करो। एलोकेशन मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एलोकेशन कैसे देते हैं हम,
पैरेंथेसिस में देते हैं, और पैरेंथेसिस में हमको क्या लिखना है, जो डिमांड है वो सप्लाई है उसको कंपेयर करके यहाँ पर एक नंबर लिखना है, ठीक है। सो जितना डिमांड रहेगा उतना, अगर हमारे पास सप्लाई अवेलेबल है तो उतनी डिमांड हम यहाँ पर लिख देंगे, या जितना डिमांड है उतना सप्लाई अवेलेबल नहीं है तो जितना अवेलेबल है सप्लाई वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। बट वी विल इन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, मैट्रिक्स बोलने के बाद में सिर्फ ये जो अंदर के ब्रैकेट दिख रहे हैं ना, इतने कंसिडर करो, नहीं तो ये बाहर के भी कंसिडर करोगे, ये कंसिडर करना है हमारे को न्यूमेरिकल में, बट हमारे को एलोकेशन के लिए सिर्फ ये जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं जो डार्क मैंने किए हैं उतने ही आपको कंसिडर करना है। सो ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर या टॉप लेफ्ट कॉर्नर से हम एलोकेशन देना शुरू करेंगे, और ऐसे एलोकेशन देते देते हम साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, हम हमारा प्रॉब्लम जो है वो फिनिश करेंगे। सो हियर द प्रॉब्लम विल बी फिनिश्ड एंड इट विल बिगिन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर से लेके बॉटम राइट कॉर्नर तक हम क्या करना है, मूव करना है। अब इसकी मूवमेंट जो है वो ऐसी हो सकती है, मतलब हम एलोकेशन देने के बाद में इधर भी मूव कर सकते हैं, फिर एलोकेशन देने के बाद इधर भी मूव कर सकते हैं, और एलोकेशन देने के बाद इधर भी मूव कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिम कंडीशन। रिम कंडीशन यानी क्या, तो अगर मैं पहला कॉलम कंसीडर करता हूँ तो पहले कॉलम का डिमांड कितना है, और पहली रो कंसीडर करता हूँ तो पहली रो का सप्लाई कितना है, तो इनका सप्लाई और डिमांड जब मैं कंपेयर करूँगा उस हिसाब से मुझे राइट जाना है, लेफ्ट जाना, राइट जाना है, डाउनवर्ड जाना है या डायगोनल जाना है, ये मैं डिसाइड करूँगा। ओके, ये रहेगा मेरा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ओके, सो इसको हम और डिटेल में समझ के लेंगे, बट रिम कंडीशन समझ लो कि जो रो है, जो कॉलम है, जो क्रॉस हो रहा है, उनको हम क्या कर रहे हैं, रिम बोल रहे हैं, रिम। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय न्यूमेरिकल। सबसे पहले कभी भी ध्यान में रखना, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स बैलेंस्ड है या नहीं है वो चेक करना। तो हमारा सप्लाई कितना है, 10 + 1 11 + 6 17 सप्लाई है। हमारा डिमांड कितना है, 7 + 12 + 3 15 + 2 17 17 हमारा सप्लाई है, 17 डिमांड है। तो ये प्रॉब्लम कैसा है, बैलेंस्ड है, इसलिए हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। मेरे पास में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स कितने हैं, 4 हैं, प्लांट्स कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो इन 3 प्लांट से जो भी सप्लाई होगी इन चारों डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को जाएगी, ठीक है। सो कितनी जाएगी वो डिसाइड करने के लिए हम कौन सा रूल यूज़ कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ओके, सो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्या बोलता है, स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। ओके ओके, अपर लेफ्ट हैंड सेल, अपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर से शुरू करो और अलोकेट करो एज मच एज पॉसिबल यूनिट्स टू दैट सेल अकॉर्डिंग टू द रिम कंडीशन। ओके, अकॉर्डिंग टू रिम कंडीशन। सो स्टार्ट फ्रॉम दिस, ओके, पैरेंथेसिस बनाओ, ऐसी ब्रैकेट बनाओ एंड कितने दे सकते हैं, सप्लाई और डिमांड चेक करना है, रिम कंडीशन चेक करनी है। ये है रो, ये है कॉलम, ये है रो। तो सप्लाई कितने का है, 6 का सप्लाई है। प्लांट ए कैन सप्लाई 6 यूनिट्स वेयर एज डेस्टिनेशन 1 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 1 रिक्वायर्स 7 यूनिट्स। इसको चाहिए 7, दे सकता है 6। तो दोनों में से जो भी मिनिमम नंबर हो यहाँ लिखना है, और जो मिनिमम नंबर आपने लिखे उसको कर देना है 0। 0 करना है मतलब क्या होता है, देखो हम ए प्लांट से 6 यूनिट्स भेज सकते थे कोई भी सेंटर को, फिर हम वो 2 को भेज सकते थे, 1 को भेज सकते थे, 3 को भेज सकते थे, 4 को भेज सकते थे, कहीं पर भी हम भेज सकते थे। सिंस हमने मेथड यूज़ की नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बोलती है कि नॉर्थ वेस्ट सेल से शुरू करो, तो इसलिए इस सेल को मैंने पहले एलोकेशन दे दिया। सो पहला एलोकेशन इसको गया, मतलब पहला ट्रांसपोर्ट गया प्लांट 1 को। अब प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 1 को, उसकी रिक्वायरमेंट थी 7, मेरा सप्लाई था 6, तो मैंने 6 के 6 पूरे आइटम्स जो है वो सप्लाई कर दिए हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 1 को। तो सिंस मैंने 6 के 6 भेजे हैं तो मेरा सप्लाई कितना बचा है, अब 0 बचा है, इसलिए मैं इसको 0 कर दूँगा, ठीक है। और मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो 7 में से 6 फुलफिल हो चुका है। कितना रिक्वायरमेंट बचा है, डिमांड कितना बचा है, 1 बचा है, तो रिमेनिंग इज 1 आइटम। नाउ सिंस हियर इस केस में डिमांड जो है इज ग्रेटर देन सप्लाई, इस केस में डिमांड कैसी है, ग्रेटर देन सप्लाई है, सप्लाई से ज़्यादा डिमांड है। तो ऐसी केस में हम
डाउनवर्ड सेल में मूव करते हैं। नेक्स्ट एलोकेशन हम किधर देंगे, इससे नीचे वाले सेल में देंगे, ठीक है, इससे नीचे वाले सेल में हम नेक्स्ट एलोकेशन देने वाले हैं। सो पहली कंडीशन है डिमांड अगर सप्लाई से ज़्यादा है तो नीचे यानी डाउनवर्ड मूव करो सेल से। नेक्स्ट एलोकेशन कहाँ दोगे आप, डाउनवर्ड, उससे नीचे, ओके, नेक्स्ट सेल में। अगर डिमांड जो है वो सप्लाई से कम रहता है तो हमको मूव करना है हॉरिजॉन्टली राइट साइड में। हमको किधर मूव करना है, हॉरिजॉन्टली राइट साइड। यही अगर उल्टा रहता था, यहाँ डिमांड 6 रहती थी, सप्लाई 7 रहता था, तो मैं क्या करता था, राइट के सेल में नेक्स्ट एलोकेशन देता था। आया है, बट वैसा है क्या, नहीं है, वैसा नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, अब किधर मूव कर रहा हूँ, आई एम मूविंग डाउनवर्ड, ओके, क्लियर है ये, ओके। साथ ही साथ में ये अगर ध्यान में नहीं रहता है आपको, तो देखो हमको क्या करना है, जो चीज़ ज़ीरो हो गई, सप्लाई अगर ज़ीरो हो गया है तो इसको क्या करो, इसको क्रॉस ऑफ कर दो। क्रॉस ऑफ कर दो मतलब क्या, अब इस रो में कहीं पर भी अलोकेशन नहीं दिया जा सकता। अब नेक्स्ट अलोकेशन सेकंड रो में जाएगा या थर्ड रो में जाएगा, बराबर है। सिंस हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कैसे कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट से लेके हमारा साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, बराबर है। तो ये मूवमेंट ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ओके। सो इस तरीके से आप डाउन, राइट, डाउन, डायगोनल, इस 3 डायरेक्शंस में हम मूव कर सकते हैं। तो सिंस ये रो क्रॉस ऑफ हो गई है तो इधर कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, मतलब मूवमेंट किधर होने वाली है, नीचे। सो देयरफॉर इफ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, मूव डाउनवर्ड्स। अब नेक्स्ट है सेल नंबर 2-1, C1221 को क्या करना है, एलोकेशन देना है। तो एलोकेशन के लिए मैं बना दूंगा पैरेंथेसिस, कितना सप्लाई है, प्लांट बी का सप्लाई कितना है, 1 है, ओके। प्लांट 1 का, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 1 का कितना डिमांड बचा है, 1 बचा है, तो सप्लाई भी 1 है, डिमांड भी 1 है, तो यहाँ पर जितना सप्लाई है उतना डिमांड है, तो जितना सप्लाई मैं कर सकता हूँ मैक्सिमम, उतना पूरा की पूरा यहाँ पर मैं अलोकेट कर दूँगा। सो हियर द डिमांड इज इक्वल टू व्हाट, सप्लाई। सप्लाई और डिमांड कैसा है, इक्वल है, तो मैंने 1 लिख दिया, तो ये हो गया 0 मेरा डिमांड। अब डिमांड बची क्या, कुछ नहीं, 6 चले गए प्लांट ए से, 1 चले गया प्लांट बी से। अब ये भी जो डिमांड है, ये भी जो सप्लाई है, वो भी क्या हो गया है, ख़त्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया है, तो ये भी मैं क्या कर दूँगा, 0 कर दूँगा, बराबर। तो जो 0 हो रहा है उसको मैं क्या करना है, क्रॉस ऑफ करना है, तो ये भी हो गया क्रॉस ऑफ। तो मतलब ये रो का जो है वो सेटिस्फाई हो चुका है, सप्लाई एग्जॉस्ट हो चुका है, साथ ही साथ में इस कॉलम का डिमांड जो है वो सेटिस्फाई हो चुका है, फुलफिल हो चुका है। सो देयरफॉर नो मूवमेंट विल बी इन दिस कॉलम एंड इन दिस रो। अब सिंस यू कैन नॉट मूव डाउनवर्ड्स, यू कैन नॉट मूव राइटवर्ड्स, ओके, राइट में भी नहीं जा सकते और नीचे भी नहीं जा सकते, आप कैसा जाएंगे, सो सिंस डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल, यू शुड मूव डायगोनली। कैसा मूव करना है, डायगोनली इन द नेक्स्ट सेल, ओके। हियर डिस्ट्रीब्यूशन 2 सेंटर आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 2 जो है उसका रिक्वायरमेंट कितना है, 5 है। प्लांट सी डिमांड सप्लाई कितना है, 10 है, तो 10 में से मैं क्या करूँगा, जो मिनिमम एलिमेंट्स रहेंगे वो यहाँ पर एलोकेट कर दूँगा। 10 और 5 में 5 जो है छोटा है, इसलिए 5 के 5 यूनिट्स में क्या कर दूँगा, यहाँ पर सप्लाई कर दूँगा फ्रॉम दीज 10 यूनिट्स। 10 में से 5 गए, 5 बचे, तो 5 के 5 पूरे दे दिए, इसलिए इसका भी डिमांड जो है वो सेटिस्फाई हो गया। सो डिमांड इज ग्रेटर देन, सॉरी, डिमांड इज लेस देन सप्लाई, सो मूव इन राइट सेल, राइट को हॉरिजॉन्टली राइट में मूव करो, इधर कर देता हूँ मैं मूव। अब नेक्स्ट है प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 3, उसका रिक्वायरमेंट कितना है, 3 का रिक्वायरमेंट है, मेरे पास सप्लाई अभी भी कितना बचा है, 5 का सप्लाई बचा है, तो 3 के 3 पूरे दे दूंगा मैं इसको, और ये हो जाएगा 0। अब इसमें 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2 बचे, तो 2 का जो रिक्वायरमेंट है, 2 का जो सप्लाई है वो अभी भी बचा है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 3 फुलफिल हो चुका है। फिर से सिंस डिमांड और सप्लाई कैसा है, डिमांड लेस है सप्लाई से, तो मूव हॉरिजॉन्टली, ओके।
सो यहाँ पर मैं अब करूँगा बचा हुआ डिमांड फुलफिल। बची हुई फोर्थ सेंटर की डिमांड कितनी है, 2 की है। सप्लाई कितना बचा है, अभी भी 2 बचा है, तो ये भी हो गया 0 और ये भी हो गया 0। ठीक है, सो ये भी फुलफिल हो गया है और ये भी फुलफिल हो गया। तो हम कैसा मूव कर रहे हैं देखो, पहले हमने नीचे आए, फिर हमने डायगोनली में आए, फिर हमने राइट 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 ऐसा करते हुए नॉर्थ वेस्ट से हमने साउथ ईस्ट की तरफ क्या किया है, ट्रैवल किया है। ओके, अब सभी सप्लाई एग्जॉस्ट हो गया है, सभी डिमांड फुलफिल हो चुकी है। सो एलोकेशंस हो चुके हैं। तो एलोकेशंस होने के बाद में मैट्रिक्स फाइनली कैसा दिख रहा है, तो ऐसा कुछ मैट्रिक्स नज़र आ रहा है। अब मेरा काम शुरू होता है इसके बाद में कि ये जो वैल्यू है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, देखो 2 यूनिट्स लगते हैं, 2 रुपये लगते हैं 1 यूनिट भेजने को, ए से 1 को। 6 यूनिट्स में भेज रहा हूँ तो मुझे यहाँ 12 रुपये लगेंगे। 1 यूनिट भेजने के लिए 1 रुपया लगता है, तो ऐसा 1 ही यूनिट में भेज रहा हूँ। 8 यूनिट भेजने के लिए 5 यूनिट्स भेजने के लिए 1 यूनिट भेजने के लिए 8 रुपये लगते हैं, तो ऐसे मैं 5 यूनिट्स भेज रहा हूँ। ओके, सिमिलरली मुझे लगता है क्या, यस 15 यूनिट्स लगता है इसको भेजने के लिए, सी से 3 को भेजने के लिए, तो 3 यूनिट्स में भेज रहा हूँ। 9 यूनिट्स लगते हैं, 9 रुपये लगते हैं, तो मैं कितने भेज रहा हूँ, 2 भेज रहा हूँ ऐसे। ओके, सो ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं। अब मैं मिनिमम z लिखूँगा। मिनिमम z क्या रहेगा, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, ओके, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 रुपीज़ 12 लगेंगे 6 यूनिट्स भेजने को, ए से 1 को, प्लस 1 इंटू 1 1, प्लस 8 इंटू 5 40, प्लस 15 इंटू 3 45, प्लस 9 इंटू 2 18। ओके, सो ये कुछ कुल मिलाकर मेरे हिसाब से 116 कुछ रुपीज़ लग रहे हैं। और ये दिया है हमको वैल्यूज़ 100 में, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो ये 11,600 रुपये लग रहे हैं ये पूरे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ओके, इतने आइटम्स ट्रांसपोर्ट करने को मुझे कितने रुपीज़ लग रहे हैं, 11,600 रुपये लग रहे हैं। ओके, अब इस मैट्रिक्स मेथड से, इस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से मुझे कितने लग रहे हैं, 11,600। अब मैं टेस्ट करूँगा रो मिनिमा से कितने लगेंगे, कॉलम मिनिमा से कितने लगेंगे, ओके, और मैट्रिक्स मिनिमा से कितने लगेंगे, और वैन मेथड से कितने लगेंगे। ओके, सो ये